Hello everyone. In this lecture we will discuss about the topic respiration. So first of all, what is respiration? It is the process in which complex substances get broken down into the simpler ones and energy is produced. And amount of energy depends upon presence of oxygen. If oxygen is present in this oxidation process, then large amount of energy is produced, and if oxygen is absent or the process take place in the absence of oxygen, then lesser amount of energy is produced. And on the basis of presence or absence of oxygen, this process is of two types: aerobic and anaerobic respiration. In aerobic respiration, breakdown of food substances take place into the simpler forms in the presence of oxygen, and this is the complete breakdown of food substances in the presence of oxygen, and process is called aerobic respiration. And in this process initially 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन किस में होगा? पायरुवेट में, 3 कार्बन कंपाउंड में। और ये प्रोसेस कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है आगे तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया and formation of large amount of energy. But if this process take place in absence of oxygen in yeast during the process of fermentation, then it is called anaerobic respiration. Means in absence of oxygen it is called anaerobic respiration. And breakdown of pyruvate using oxygen take place in the mitochondria. ग्लूकोज से पायरुवेट का ब्रेकडाउन किस में हुआ था? साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट से फर्दर जो ब्रेकडाउन होगा CO2 एंड एनर्जी रिलीज करने के लिए इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इट विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. This is very important topic, and in this process breakup of 3 carbon pyruvate to give 3 molecule of carbon dioxide. This is the pathway related to the aerobic respiration. Here are 3 pathways given to explain breakdown of glucose. Initially glucose का breakdown pyruvate में, साइटोप्लाज्म में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल की, इथेनॉल की फॉर्मेशन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज. ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन lactic acid is formed and very little energy is produced, and when supply of oxygen is proper, then this is further broken down into the simpler form. And this is the equation that explain about the complete breakdown of pyruvate into the CO2, water and energy. Here large amount of energy is produced. Complete breakdown of pyruvate take place here. Here incomplete breakdown will take place, very less amount of energy is produced. सो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज immediately it is used to synthesize a molecule called ATP. ATP फर्दर जैस मीन्स ATP की सिंथेसिस कैसी होगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस inorganic phosphate, it will give rise to the ATP. But whenever energy is required in our body, breakdown of ATP will take place to release the ADP and large amount of energy. अदरवाइज जब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में ये ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है. इन प्लांट्स gaseous exchange take place through the stomata. Oxygen intake of CO2 and release of oxygen by the process of diffusion. हमें पता है ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस CO2 is fixed and oxygen is released out, but at the night time when there is no photosynthesis, CO2 elimination is the major activity that is taking place during the
night time. Terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. That you are aware about this particular point. And here we will discuss about why rate of breathing in aquatic organism is higher than the terrestrial organism, because terrestrial organism क्या है, these utilize the oxygen, large amount of oxygen present in the atmosphere, so they can normally breathe out. But a rate of breathing in aquatic organism is faster because they utilize only dissolved oxygen in the वाटर. सो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है. हाउ फिशेस दैट ब्रीदिंग टेक प्लेस इन फिशेस. तो फिशेस में क्या होगा, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, इट इज़ पास टू द गिल्स, एंड यहाँ से क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड. Then we will discuss about the human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है. नोस्ट्रल से एयर का पैसेज है, नेज़ल पैसेज से होते हुए ये वाया फेरिंक्स ट्रैकिया तक, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, यहाँ तक एयर एंटर कर रही है. यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, these ensure that air passage does not collapse. That means during the passage or exchange of gases O2 and CO2, जो यहाँ these prevent the collapsing. From the trachea air enters into the bronchi, means ये further किस में divide होगा, two bronchi में, in the respective lungs, right and left bronchi. These bronchi further divide into the bronchioles. जो bronchioles है large इस तरह के, ये जैसे एक ब्रोंकाई है, इसके फर्दर ब्रांचेस होंगी ये, तो इनको हम ब्रोंक्यूल्स नाम देंगे. एंड ऑन ईच ब्रोंकाई लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट. दीज आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से दैट दीज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज. क्योंकि ये डायरेक्टली आगे ब्लड सप्लाई से यहीं से होते हुए ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाएगी. एंड मेजर रोल इन द ब्रीदिंग, मेजर रोल इज ऑफ दिस मस्कुलर ऑर्गन डायफ्राम. Within the lungs, the passages divide into the smaller and smaller tubes which terminate into the balloon-like structure called alveoli, and these increase the surface for the exchange of gases. And these alveoli contain network of blood vessels. Blood vessels से ये alveoli supplied होंगी, and from here oxygen gaseous exchange जो होगा CO2 एल्वियोलाई में वापस एंटर करेगी बॉडी से एक्सेल आउट करने के लिए, और जो ऑक्सीजन है दैट इज एंटर्ड इनसाइड द बॉडी. एंड इन दिस ब्रीदिंग मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है, देयर इज़ अ बेसिक मेजर डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का पायरुवेट में, पायरुवेट का फर्दर CO2 एंड एनर्जी रिलीज होगी. रेस्पिरेशन में एनर्जी का भी रिलीज है, केमिकल प्रोसेस है. बट ब्रीदिंग में क्या है, जस्ट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2. नो एनर्जी इज रिलीज, फिजिकल प्रोसेस है ये. और यहाँ सिर्फ रिब्स का डायफ्राम का और जो हमारे चेस्ट कैविटी है, इनका बेसिकली मेन रोल है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में. ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन भी हम उसको क्या देते हैं, एंड एक्सहेलेशन. एज द नेम इंडिकेट, इनहेलेशन में क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2. इनहेलेशन की प्रोसेस में स्पेशली इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, कैसे ये प्रोसेस होगी इनहेलेशन, कैसे आप ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस प्रोसेस रिब्स लिफ्ट अप होंगी, रिब्स इसकी प्रोसेस, वेरियस जो मसल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, जो रिब्स इधर
रिब्स की जो अरेंजमेंट है इंटरनली, यहाँ मसल्स अटैच्ड होंगी जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स की अपलिफ्टमेंट होगी, रिब्स गेट अपलिफ्टेड। एंड जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जो अरेंज्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स फ्लैटनिंग होगी एक तरह से, और रिब्स की अपलिफ्टमेंट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो साइज है चेस्ट कैविटी का दैट विल बी इंक्रीज्ड। और साइज इंक्रीज है हो रहा है तो प्रेशर यहाँ क्या होगा, पूरा चेस्ट कैविटी में जो प्रेशर है दैट विल बी डिक्रीज्ड। सो फ्रॉम हायर concentration to the lower concentration from the atmosphere to the chest cavity via nasal passage and other respiratory जो pathway है वहाँ से ऑक्सीजन यहाँ एंटर करेगी चेस्ट कैविटी में। एंड फ्रॉम हेयर वाया एल्वियोलाई ब्लड वेसल से होते हुए रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से ये बॉडी के पार्ट्स में पहुँच जाएगी। एक्सहेलेशन में जहाँ CO2 का रिमूवल है जिस प्रोसेस से, वहाँ अपोजिट प्रोसेस होगी, जो रिब्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आएंगी, डायफ्राम फिर से अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा, रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में होंगी, चेस्ट कैविटी का साइज है दैट विल बी डिक्रीज्ड साइज विल इंक्रीज द प्रेशर, स्मॉल एरिया होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जो CO2 एल्वियोलाई की तक बॉडी की वेरियस पार्ट्स से होते हुए यहाँ तक पहुँची है वाया ब्लड वेसल्स की हेल्प से, दैट इज़ रिलीज्ड आउट फ्रॉम द इनर टू द आउटर एटमॉस्फेयर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द body for the release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। यहाँ इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है गैसेस की एक्सचेंज के लिए मेनली, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मेनली हीमोग्लोबिन का मेन रोल है, दैट बाइंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। और जहाँ बॉडी की वेरियस सेल्स में प्रोसेसिंग के बाद CO2 रिलीज होगी उसको बाइंड करके ये मीन्स ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके एल्वियोलाई तक CO2 वापस पहुंच जाती है और फिर एक्सहेलेशन से वो रिलीज आउट करवा दी जाती है। कहाँ प्रेजेंट होगा, दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द RBCs, ये RBCs में प्रेजेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism? ये हमने अभी पिछले पेज पे डिस्कस किया था। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, but aquatic organism only can use the oxygen dissolved in the water. What are the different ways of ग्लूकोज ब्रेकडाउन? क्या क्या वेरियस वे होंगे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के, जो हमने अभी एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड की जो फॉर्मेशन देखी थी, दैट आर द वेरियस वेज ऑफ द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? देयर ट्रांसपोर्ट वन बाय वन ये आपको एक्सप्लेन करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलर जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरी नेटवर्किंग है, वहाँ से ब्लड बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया मीन्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन टू द बॉडी पार्ट्स, एंड वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ food substances take place in the presence of oxygen and CO2 is released. That CO2 is transported with the help of binding of that CO2 with hemoglobin, and also in the dissolved form in plasma it is transported up to the alveoli. How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases?
लंग्स में क्या होगा, हमने देखा है कि वेरियस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. यहाँ आपने ध्यान रखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ गैसेस आर transported and how lungs are designed to increase the surface area.